Hi everyone, welcome back to Jobkar. I'm Shabana and I'm here with a new video, and today we will discuss some doubts which candidate have regarding this system and application services associate hiring from Accenture. But before moving further with the video, I would like to request you to subscribe to Jobkar for more job updates and placement preparation related videos, because we upload videos on daily basis. So if you do so, then this will definitely gonna help you getting your first job or getting your dream job. So do like, share and subscribe, and also you can hit the bell icon so you never miss any update from us. Okay, so with that note, let's quickly move further with the video. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग दी सेम इशू, जो कि बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है एक्सेंचर की हायरिंग में. बट before moving with the issues, like all the comments I am getting, the same comments I'm getting. So before discussing that, I would like to remind you one thing, that this is not the second phase hiring for system and application services associate. The first phase hiring is going on till now. So if you are one who have not applied yet for this role and watching the video for the first time, then do apply, because all the non-technical graduates are eligible for this hiring from the batch of 2019, 2020, 2021 and 2022. So this is the really good opportunity for these 4 batches. So अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, because the hiring is going on. Okay, and this is the eligibility criteria. So I will provide this link in the description box. You can go through all the eligibility criteria, and if you want, then you can check out my previous video in which I have discussed all the things in detail. आपको वहाँ से बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है इन दैट केस. ओके, बट ये हायरिंग बहुत महीनों से चल रही है, तो ऑलमोस्ट सारे लोगों ने ही अप्लाई कर दिया होगा, पर अगर नहीं किया है तो आपको इस अप्लाई नाउ बटन पर जाना है और अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है. ओके, दिस इज द डिस्क्रिप्शन फॉर द जॉब. योर CTC विल बी 3.33 LPA. ओके, this is the job description. Your resignation will be system and application services associate. Okay, and this is all they have given about it, and this is the process for applying. So you can go through with that process if you want to. Okay, and this is the eligibility criteria. Basically all the non-technical graduates are eligible, so do apply if you are one of the non-technical graduate from these 4 batches. Okay, now quickly move further with the comments I'm getting. So there are so many students who are not getting the offer letter even after clearing the interview. So one thing, अगर आप 2022 बैच से हैं तो आपका जो ऑफर लेटर है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बिकॉज आपकी जो ज्वाइनिंग है वो भी डिले होगी, क्योंकि अभी आप कॉलेज से फ्री नहीं हुए हैं, अभी आपके लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स नहीं हुए होंगे और आप कॉलेज से फ्री नहीं हुए होंगे अभी, तो इसलिए 2022 बैच के लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो सकता है. ओके, बाकी अगर आप 2020-2021 बैच से भी बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और आपको ऑफर लेटर नहीं आया है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, बिकॉज अगर आपने क्लियर किया है इंटरव्यू तो कंपनी आपको ऑफर लेटर भी देगी. अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है तो फॉर दी सेफर साइड आप एक काम कर सकते हैं कि आप उनको एक रिमाइंडर मेल भेज दें कि आपको ऑफर लेटर नहीं आया है. ओके, ये काम आप कर सकते हैं. दूसरी चीज़, डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज अगर आपने क्लियर किया है तो आपको ऑफर लेटर तो आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा. ओके, नाउ सेकेंड डाउट जो लोगों को हो रहा है रिगार्डिंग देयर ज्वाइनिंग. सो फॉर दी 2022 बैच स्पेशली, आपकी ज्वाइनिंग मोस्ट प्रोबेबली आपके कॉलेज से फ्री होने के बाद आएगी. सो आपको टाइम लग सकता है, तो इन दैट केस आप अभी अपने कॉलेज पर ध्यान दीजिए. अगर आपने क्लियर कर लिया है इंटरव्यू, ऑफर लेटर आपको आ चुका है, या ऑफर लेटर नहीं भी आया है, आपने इंटरव्यू क्लियर किया हुआ है, तो आपको ज्वाइनिंग और ऑफर लेटर दोनों आएगा.
वो थोड़ा-सा लेट होगा बिकॉज़ आप 2022 बैच से हो और आप कॉलेज में बिज़ी हैं या फ्री नहीं हैं अभी। तो अभी आपकी जॉइनिंग जो है वो सबसे लास्ट में होगी, ओके। नाउ अगर आप 2022 छोड़ के बाकी 3 बैच से बिलॉन्ग करते हैं और आपको ऑफर लेटर या जॉइनिंग लेटर नहीं आया है इंटरव्यू क्लियरेंस मेल के बाद भी, तो बेसिकली जॉइनिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। सो दे रिलीज ऑफर लेटर बैच बाय बैच, जैसे कि सबसे पहले वो 2019 बैच को कंप्लीट करेंगे, दैन 2020 बैच को कंप्लीट करेंगे, दैन 2021 एंड दैन 2022। थिंग्स गोज लाइक दिस। सो प्लीज़ बी क्लियर इन योर माइंड। आप अपनी दूसरी चीज़ों को फोकस कर सकते हैं बाय दैट टाइम। नाउ मुझे कुछ मेल्स आ रहे हैं कि कुछ लोगों को 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, बट उनको इंटरव्यू का जो लाइक रिजेक्शन और सिलेक्शन ईमेल नहीं आ रहा है। इंटरव्यू उन्होंने दे चुका है पर उनको कोई भी ईमेल नहीं आ रहा है एक्सेंचर की तरफ से। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इन एक्सेंचर ऐसा होता है कि कभी-कभार वो आपको रिजेक्शन मेल नहीं भेजते हैं। सो ये सिर्फ एक्सेंचर की बात नहीं है, सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि कभी-कभी वो आपको रिजेक्शन मेल नहीं भेजते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस वो रिजेक्शन मेल भेजते हैं, बट इन सम केसेस वो रिजेक्शन मेल नहीं भेजते हैं एंड दैट केस कैन बी योर्स। सो आपको मैक्सिमम 1.5 to 2 months वेट करना है फॉर योर इंटरव्यू रिजल्ट्स। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, उनकी तरफ से कोई ईमेल नहीं आ रहा है, तो आप दूसरी जॉब के लिए प्रिपेयर करिए एंड दूसरी जॉब को क्रैक करने के लिए प्रिपेयर करिए। बिकॉज अगर आपको इतने टाइम में भी मेल नहीं आया है, दैट मीन्स यू आर रिजेक्टेड एंड दे हैव नॉट सेंट यू द रिजेक्शन ईमेल, ओके। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो आपको रिजेक्शन मेल भेजते ही नहीं हैं। तो आपको उस को लेके नहीं बैठना है कि नहीं मुझे रिजेक्शन मेल तो आया नहीं है तो मेरा सिलेक्शन हो गया होगा या फिर ऐसा कुछ भी। आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है और आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत सारी कंपनीज में ट्राई कीजिए। अगर आपने असेंचर का दिया हुआ है इंटरव्यू और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है या फिर रिजल्ट पेंडिंग है, जो भी है, मीनवाइल आप दूसरी कंपनीज में ट्राई करिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, ओके। दिस इज द सजेशन फ्रॉम माय साइड। नाउ the next comment which I'm getting from so many candidates that they have applied for system and application services associate, but in offer letter the role is mentioned at application development, okay। So मैं ये बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं जाके कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये दिक्कत आ रही है कि उन्हें एप्लीकेशन डेवलपमेंट का रोल मिला है ऑफर लेटर में, ओके। तो बेसिकली मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इस चीज़ की वजह जान पाऊँ, बट मुझे अभी कोई प्रॉपर रीज़न नहीं मिल रहा है इस चीज़ के लिए। तो अगर आपको आपके ऑफर लेटर में एप्लीकेशन डेवलपमेंट लिखा हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जस्ट गो विद द प्रोसेस। जो चीज़ें आपको कंप्लीट करने को कही जा रही हैं, लाइक ऑल दी जॉइनिंग प्रोसेस, आप वो सब कंप्लीट करिए अपनी। एप्लीकेशन डेवलपमेंट लिखा होना ऑफर लेटर में मैंडेटरीली ये नहीं है कि आपको जाके कोडिंग ही करनी पड़ेगी, ओके। बिकॉज आपके जो ऑफर लेटर में लिखा हुआ होता है, आप कंपनी की जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिवाइडेड होती हैं। Like if I talk about TCS, so the candidate selected for associate system engineer, after going to the company they wind up to the management projects or support project or maintenance project। So दिस इज़ द केस एंड सारी MNCs की अगर मैं बात करूँ तो सारी MNCs के बाद मोस्टली मेंटेनेंस एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट्स ही होते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोडिंग नहीं आती है, मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कैसे करूँगा, ओके। वन थिंग। नाउ सेकेंड थिंग, अगर आपको मान के चलिए कि मिल जाता है कोडिंग वाला पार्ट ही मिल जाता है, आपको डेवलपर का रोल ही मिलता है किसी प्रोजेक्ट में, तो थिंग्स विल बी ईजियर बिकॉज आप वक्त के साथ सीख लेंगे। आपको बहुत प्रॉपर टाइम दिया जाएगा और इनकेस आप नहीं भी सीख पाते हैं तो आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी चांस मिलेंगे। दिस इज़ नॉट द केस कि आपको कंपनी निकाल देगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
तो उन चीज़ों के लिए मत डरिए। अगर आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट का रोल मिला है इन दी ऑफर लेटर, तो जस्ट गो विद द प्रोसेस एंड फॉलो द प्रोसेस। आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट करिए, आपकी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करिए। कंपनी में जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी अभी, तो किसी भी चीज़ को लेके डरिए मत, बिकॉज कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है, जैसे आप कोडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सीधा निकाल देगी। बिकॉज कंपनी को भी पता है कि आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से ग्रेजुएट हैं और आपने अभी तक कोडिंग नहीं करी होगी इन योर कॉलेज। ओके, सो आप अपने दिमाग में ये चीज़ें बिठा के रखिए और किसी भी चीज़ को लेके ये मत करिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है अगर, तो आप डेफिनेटली एक्सेंचर ज्वाइन करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ रियली गुड कंपनी इन केस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस और इन केस ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट। बहुत अच्छी कंपनी है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करनी है। अगर आपके पास एक्सेंचर से बहुत अच्छा ऑफर है कोई कंपनी का, तो तब आप वो चूज़ करिए। नहीं तो एक्सेंचर इज़ द बेस्ट कंपनी फॉर यू, बिकॉज यू आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग अ रियली गुड सैलरी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड yeah, so you should join. Okay, so these all are the 3-4 comments which I'm getting from so many candidates. So if you are one who have the same issue, so just follow the guidelines which I have provided, because this is only the case, this is only the possible case I was able to find. Okay, so या आपको ये सब कुछ करना है। और अगर आपका कोई दोस्त है जिसने अभी सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट के लिए अप्लाई नहीं करा है या फिर अप्लाई किया हुआ है एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट, एंड ही और शी हैव सम डाउट, सो ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। if you like the video, then you need to hit the like button and subscribe to Jobker, and also guys please सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए वीडियोस को। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियोस देखते जा रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक भी करिए और शेयर भी करिए चैनल को। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Also hit the bell icon, so whenever we upload videos you will get notification, and you can follow us on Instagram for quick updates. And yeah, this is all for today's video. I'll be coming back with more such kind of videos. Till then, take care and bye bye.